This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your PTE instructor. And today I am going to guide you about PTE Academic and PTE Core. In today's session, we will also see the PTE portal, which will be very much helpful for PTE preparation. And what I believe that PTE is comparatively IELTS, it's very easy. And you may not have to spend more than 3 weeks or 4 weeks for preparation. How I'm going to teach you in this session, I'm going to guide you and tell you everything. I'll be available Monday to Saturday, what I have planned. But what I think that 3 days may be enough for a PTE preparation, but I want you to get better scores. So I will be with you 6 days a week, Monday to Saturday, 10:15 onwards. If you want to join me, you have different dates available. You can join me from 6th May, 13th May, 20th May, or whatever the date you like. Sir, what kind of questions come in PTE? These are the different questions which come in PTE, and we are going to practice some questions, and you will also practice, and you will come to know that how easy some sections are. They will hardly take one day, and you will reach your maximum score in PTE. In PTE, writing is not a problem at all. If you think that you are going to study writing part in PTE for 2-3 weeks, you are absolutely wrong. My 60 minutes are enough for PTE writing. We will have to spend a lot of time on listening, reading, and speaking, but we will not have to spend a lot of time on writing because you will be provided writing templates. You need to memorize, and then you need to appear in mock test, and you will see the magic, right? So these are the questions which I'm going to follow, and you will come to know that how these questions come in exam. We are going to do the practical in today's class. I no students are asking about the fee. So fee is 61,259 rupees, including taxes 65,000 rupees, right? So, and this is IELTS master class, PTE master class, and I'm switching towards portal. मैं जिस पोर्टल की बात कर रहा हूँ वो बार बार के हम आपको एक पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, आइए हम उस तरफ चलते हैं। ये पोर्टल आपके पास होगा, आपको किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपके सामने देखिए मैं पोर्टल पे जा रहा हूँ, और आपका ये पोर्टल आपकी फीस के अंदर इस शामिल है। जो आप हमें 11,000 पे करेंगे, इट इज इंक्लूडेड इन 1 मंथ, लेकिन उसके बाद आपको चाहिए होगा तो आप उसके लिए 3,500 पे करेंगे, क्योंकि हम भी आपके अकाउंट के चार्जेस पे करेंगे तो आपको देंगे। आपके पास 30 डेज तक उसकी एक्सेस रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है। देन यू विल पे अस, वी विल बाय ऑन बिहाफ। आप खुद परचेज करना चाहें, आप खुद भी परचेज कर सकते हैं, दैट्स गोना बी सेम प्राइस, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। चले भाई, ये हम आ गए अपने पोर्टल पर। ये है पोर्टल, आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ही हमारा पोर्टल है, आप देख सकते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं, ये हमारा होम पेज आ रहा है आपके सामने। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब सब परफॉर्मेंस प्रोग्रेस भी आपके पास आती है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है स्टूडेंट्स की। और यहाँ पर ये देखें, ये है पीटीई एकेडमिक और पीटीई कोर में। अब आप डिफरेंस जानना चाह रहे होंगे, सर दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस के हैं। वो क्वेश्चंस आपको कहाँ से देखेंगे, आइए मैं आपको वहां पे भी लेके चलता हूँ। और उसके लिए मैं एक और जो मेरा एडमिन पोर्टल है, मैं वहां जा रहा हूँ। यहाँ पर चलते हैं।
ये आ गया हूँ वापस। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्लिक किया ना, तो ये मेरे पास देख सकते हैं आप, पहला सवाल आ, रीड अलाउड। आज का सेशन स्पीकिंग के पे रख रहा हूँ, कल का सेशन रीडिंग पे रखूंगा, परसों का सेशन लिसनिंग पे रखूंगा। मैंने आपको बता दिया राइटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन पीटीई, तो राइटिंग की टेंशन बिल्कुल निकाल दें। जिन सवालात को मेरे साथ प्रैक्टिस करना है वो स्पीकिंग है, रीडिंग है और लिसनिंग। आज मैं पूरा आपके सामने रीडिंग रख दूंगा कि रीडिंग में हमें क्या क्या, स्पीकिंग में हमें क्या करना हो। आइए, पहला सवाल आपके पेपर में आ रहा है, रीड अलाउड। रीड अलाउड में जब हम जाते हैं तो हम भूल गए इसका पासवर्ड, SKHPTE1 पासवर्ड याद नहीं आ रहा, कोशिश करते हैं याद आ जाए। माशा हाफजा अच्छा है हमारा। तो हमने इस रीड अलाउड पे क्लिक किया, कहता है आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, कहते हैं बिगिनिंग इन 32 सेकेंड्स। आप देख सकते हैं ये 32 सेकेंड्स में स्टार्ट हो जाए, और कहते हैं क्लिक टू स्टार्ट। अगर आपने क्लिक नहीं किया तो स्टार्ट नहीं होगा। आपको नजर आ रहा है, हैंड रेस कर लें वो स्टूडेंट जो मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, अपना प्रॉपर नेम मेंशन करें, ये मत मेंशन किया करें आईपैड, आईफोन, V2036677788। राबिया मेरे साथ हैं, नादिया मेरे साथ हैं। तो राबिया आपके पास 2 सेकंड्स बचे हैं। जैसे ये बीप की आवाज आपको नजर आएगी, आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, पहले मैं आपके लिए एक रीड करता हूँ, देखता हूँ मेरा स्कोर क्या आता है। ठीक है, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं रीस्टार्ट करता हूँ, इस सवाल में आपको 32 सेकेंड्स मिलते हैं। इससे पहले कि वो ये स्टार्ट करे, आपके पास कुछ टाइम होता है कि आप इसको एक दफा देख लें। अच्छा, अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे ये वर्ड आपको नजर, चीनो चीनो चीनो। चीनो तो कुछ वर्ड्स ऐसे आपको दे देगा जिसकी आप लाजमी तौर पर कि गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे। इस सवाल के अंदर आपका तलफ्फुज मैटर करता है। Scientists have discovered a way that bacteria in the gut can control genes in our cells. Their work shows that chemical messages from bacteria can alter chemical markers throughout the human genome. The signal chemicals are made when bacteria digest fruits and vegetables. By communicating in this way, the bacteria may help to fight infections and to prevent cancer. मैंने इसको स्टॉप कर दिया, मैंने जानबूझकर 2 जगह पर गलतियां करी। अब जब आपके पास ये पोर्टल होता है तो इसी पोर्टल पर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा सर, हमें फायदा क्या हुआ इस प्रैक्टिस का, देखिए जादू। याद रखें, याद रखें, याद रखें कि पीटीई के अंदर सब हर जगह पर एआई इन्वॉल्व है। आप ह्यूमन चेकिंग नहीं होती, कंप्यूटर आपके तलफ्फुज को सुनेगा और बताएगा कि आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। अब इसको मेरी आवाज कितनी अच्छी लगी, आइए देखते हैं। मैंने इसको सबमिट पे क्लिक किया। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, वो कहता है आपका प्रोनाउंसिएशन में 4.5, फ्लुएंसी 52। अच्छा, मैंने थोड़ा स्लो पढ़ा। अब देखो, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा कि तुमने स्लो पढ़ा है। यू हैव टू बी फास्ट। और उसने कहा कंटेंट आपने सब पढ़ा, लेकिन देखो वो कहता है कि आप मेरे हिसाब से आपने कुछ वर्ड्स को मिस कर दिया, जबकि मैंने कोई वर्ड मिस नहीं किया था। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा आप लैपटॉप पे करेंगे, गूगल क्रोम आपके पास होना चाहिए, हेडफोन्स लगा के करेंगे ताकि आपका कोई भी वर्ड मिस ना हो रहा। अच्छा, इस सवाल में किस बात को ये टारगेट करता है, आइए जरा आप इस बात को देखते हैं। यहां पर देखिएगा, जहां फुल स्टॉप होता है वहां का पॉज, और जहां कॉमा होता है वहां के पॉज में डिफरेंस होना चाहिए।
अगर मैं एक दफा दोबारा जाते हैं, हम दोबारा इसको रीड करते हैं, अभी उसके बाद राबिया पढ़ेंगी। चले राबिया से ट्राई करते हैं। राबिया, आर यू रेडी? आर यू देयर? बाकी लोग अपना प्रॉपर नेम मेंशन करें, पार्टिसिपेंट्स में जाके रीनेम करें। राबिया, आर यू अवेलेबल? आपका माइक में आवाज नहीं आ रही। आप हैंड्स फ्री निकाल दें, अगर आपने हैंड्स फ्री लगाया हुआ है तो हैंड्स फ्री निकाल दें, तो फिर आपकी शायद आवाज आ जाए। आप माइक पे टैप करेंगे। 667788 कौन है? माइक ऑन करें अपना। नहीं राबिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका माइक ऑन हो गया लेकिन कुछ मसला है। 667788 पे कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अंबर? सर, दिस इज मी हमजा। हफ्सा? हफ्सा? हाँ जी, मैं अपना रीनेम कर लेती हूँ अभी। मैं कर दिया। आपने कहाँ आप इतनी तकलीफ उठाएंगी, हमने कर दिया। थैंक यू सो मच। चले, आपको ये कंटेंट नजर आ रहा है? एक हाँ वर्ड, जी। इस वर्ड को सुनने क्या कहते हैं? Chino. चीनो। चीनो। और ये Jeans. जीन्स। Chino. pronunciation matters in this question, fluency matters in this question। पूरे पूरे ओके। मार्क्स आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी स्लो थी। कोशिश कीजिएगा आप अपनी स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है? जैसे टोन की आवाज आएगी आप स्टार्ट हो जाएगा। आपको अभी आवाज आने वाली है। ऊपर देखिए, बिगिनिंग इन लिखा हुआ नजर आ रहा है, 31 सेकेंड्स। जैसे बीप की आवाज आएगी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझसे पूछिएगा नहीं सर, मैं बोलूं? ठीक है? पेपर में भी आपको जैसे टूट आवाज आएगी, ये नहीं हाँ मैं बोलूंगा, एक्शन करें, बस बस स्टार्ट हो जाए। ये हर सवाल की इस तरह से आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। और ये देखो, एक सवाल आज ऐसा लग रहा है हो गई प्रैक्टिस, समझ तो आ गई, अब प्रैक्टिस करनी है और क्या करना है। इट्स ऑल वेरी सिंपल। 1 2 3 गो। Scientists have discovered a way that bacteria in the gut can control genes in our cells. Their work shows that chemical message from bacteria can alter chemical markers throughout the human genome. Thus, signal chemicals are made when bacteria digest fruits and vegetables. By communicating in this way, the bacteria may help to fight infections and to prevent cancer. अब देखते हैं इसकी आवाज आपको, आपकी कितनी, आपने स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखी है तो देखिए अब शायद आपकी स्पीड पे आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाए। फ्लुएंसी आपने ज्यादा अच्छी पकड़ी है। देखिए आ गया ना फ्लुएंसी में मार्क्स ज्यादा, हमसे ज्यादा स्कोर मार दिया आपने। हमने जानबूझ कर अपनी स्पीड को स्लो किया था ताकि, अब कंटेंट में देखिए उसने आपके 54 वर्ड्स पकड़ ली, जबकि आपने सारे वर्ड्स बोले। तो ये कभी Hmm. कभार माइक की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि माइक में नहीं जा रहा हो। प्रोनाउंसिएशन पे अभी भी 4.5 आए, बट यू आर बेटर देन योर टीचर। चले, Oh, thank दैट्स you. वेरी गुड। चले, इससे हमें भी पता चलता है हमें कितना इम्प्रूव करना है। और बाकी कौन ट्राई कर रहा है, सेम देखते हैं कौन इसमें फुल मार्क्स लेकर आता है। राबिया, आपका माइक चला, ट्राई करें। अमीशा, नादिया, शमीन, अब चल गया। राबिया, आपका माइक चल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये 34 सेकेंड्स के अंदर आपका स्टार्ट होगा। जैसी आवाज आए टूट, देखते हैं आप कितना, आपका क्या स्कोर आता है, आपकी आवाज इसको कितनी अच्छी लगती है। ये आपका पहला सवाल है, चाहे आप पीटीई एकेडमिक में हो, चाहे आप पीटीई कोर में हो, ये सवाल आपके पास आए। और इस तरह के तकरीबन 3 4 5 छोटे छोटे पैराग्राफ्स इस तरह से आते हैं। रेडी? 5 4 3 2। Scientists has discovered a way that bacteria in the gut can control genes in our cells. Their work shows that the chemical message from the bacteria can alter chemical markers throughout the human genome. The single chemical are made when bacteria against fruits and vegetables. By communicating in this way, bacteria may help to fight infection and to prevent cancer. अच्छा, हमें आपका स्कोर हमसे कम होने वाला। हमने आपके तलफ्फुज की 3 4 गलतियां पकड़ ली। अच्छा, हमने पकड़ ली तो देखते हैं ये पकड़ता है नहीं पकड़ता आपकी गलतियां।
सबमिट हो रहा है, देखें हो गया ना, प्रोनाउंसिएशन में 4 आ गए ना, कम हो गया ना, हमने आपको गलती पकड़ ली थी तो हमने कहा ये कम होने वाला है। तो अब इस तरह से आप हर सवाल को प्रैक्टिस करके अपने गलती को भी काउंटर कर सकते हैं, मैं गलती कर रही हूँ, और जब तक आप मैक्सिमम स्कोर पर ना आ जाए ट्राई करते रहें, कीप प्रैक्टिसिंग। और कोई इसको ट्राई करेगा, देखते हैं कोई हमसे इस पे और बेहतर स्कोर कर जाए। अमीशा, आर यू रेडी? Sure, sir. चल, आपके लिए हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग इन 34 सेकेंड्स। पेपर में भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल जिस तरह से ये पोर्टल डिजाइन किया गया है सेम आपका पेपर का पैटर्न है ये, ठीक है। और ये पीडीएफ से तो प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती, ना किसी ऑडियो से हो सकती है, चलो कर भी ली तो स्कोर नहीं पता चलता। तो ये पोर्टल आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जो हम आपको प्रोवाइड करें। और ये पोर्टल आने के बाद ही मैंने क्लासेस का आगाज किया है, वरना इसके बगैर तैयारी मुमकिन नहीं है। रेडी? 5 4 3 2 1। Scientists have discovered a way that bacteria in the gut can control the gene in our cells. Their work shows that the chemical messenger from the bacteria can alter the chemical marker throughout the human genome. The signal chemicals are made when the bacteria digest fruits and vegetables. By communicating in these ways, the bacteria may help to fight infection and to prevent cancer. अच्छा, अब आपका शायद इसको आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होगी, वजह क्योंकि क्लियर नहीं आ रही थी। देखिए उसने आपको कोई स्कोर नहीं दिया, क्योंकि आपके माइक्रोफोन में ना वो क्वालिटी नहीं आ रही जो उसको चाहिए। तो आपका माइक्रोफोन बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। दोबारा भी ट्राई करते हैं, दूसरा एक और सवाल निकालते हैं, एक और सवाल आगे। चले नादिया, यू आर स्टार्टिंग विद दिस। नादिया, आर यू रेडी? अनीशा दोबारा आते हैं आपके पास। नादिया, आर यू रेडी? आपका माइक नहीं चल रहा नादिया। हफ्सा, आर यू रेडी? हफ्सा, Yes, sir, I'm ready. स्टार्ट। Should I start? बस वो टोट आएगी, स्टार्ट हो जाएगी। One of the complex agricultural problem is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss of resources, but also has environmental implications, such as greenhouse gas emissions from decomposing food waste in landfills. ये चीज प्रोनाउंसिएशन Oh, 5 आउट ऑफ 5। wow. कंटेंट और आपके 57 वर्ड्स पकड़ लिए उसने, और उसने फ्लुएंसी में अभी भी 76 आ रहे हैं। हमें फ्लुएंसी में कोई चीज ऐसी है जो आप हमारी स्किप हो रही है, हम और स्पीड अप हो जाते हैं, देखते हैं Hmm. शायद ये हमें अच्छा स्कोर दे दे, ठीक है ना। एक दफा फिर ट्राई करें अफसा आप, लेकिन अब स्पीड को थोड़ा सा पहले से ज्यादा रखिएगा, अभी 30 सेकंड, क्योंकि ये हमें आपकी आवाज से उसको बहुत अच्छी लग रही है। प्रोनाउंसिएशन पूरे मार्क्स दे दिए इसने आपको। हमें आपसे पता चलेगा कि क्या ये रफ्तार ज्यादा कर दें तो ये हमें अच्छा स्कोर दे देगा, Okay. अभी पता चलेगा। 15 सेकंड में आप शुरू करने वाले हैं। अच्छा, जहां फुल स्टॉप हो और जहां कॉमा हो वहां पे भी ब्रेक ना मारे, Okay. ठीक है ना, बस गोली हो जाए। Okay. स्टार्ट। One of the complex agriculture problem is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss of resources, but also has environmental implications, such as greenhouse gas emissions from decomposing food waste in landfills. अच्छा, अब देखते हैं इसको, अब आपकी आवाज कितनी पसंद है। क्या फ्लुएंसी में मार्क्स 76 से आगे बढ़ गए? देख लो। सर मगर प्रोनाउंसिएशन में कम हो गए। क्योंकि स्पीड अब हमने हो गया ना, अब दोनों चीजों को
एक दफा और ट्राई कर दें। आप पहले उसने आपके 55 वर्ड्स पकड़े थे, अब लेकिन 57 पकड़े थे, अब आपके 55 वर्ड्स उसने कैच किए। अच्छा चलें। बाकी ओके। लोगों के लिए भी ये लर्निंग हो रही है कि देखें, रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, कंटेंट उसने कम किया तो कंटेंट पे मार्क्स उसने काट लिए, और जब ये आपको सब पे मिल जाए ना ये 5, 90, 90, 90, फिर आप सेटिस्फाई हो। और ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक दिन बैठ के तो आप उस लेवल पर बोलना शुरू कर देंगे। अभी दोबारा शुरू करते हैं, 30 ठीक सेकंड है। आपको वेट करना पड़ेगा। और इसी पोर्टल पे जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे, यार मेरी स्पीड ये होनी चाहिए, मेरी स्पीड ये होनी चाहिए। अब स्पीड के साथ तलफ्फुज और वर्ड्स की क्लियरिटी भी बहुत मैटर कर रही है। आसान सवाल है ना वैसे ही, हम्म। दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन स्पीकिंग में। चलो अभी और दूसरे सवाल पे जाते हैं। अभी बस ये 2-3 लोग और ट्राई कर लें, इसके बाद शाबीन ट्राई करेगी, फिर राबिया, फिर अमीशा, फिर आईफोन। One of the complex agricultural problem is the issue of food waste. Food waste refer to the discarding of edible food at various stages of food supply chain from production to consumption. This not only represents a significant loss of resources, but also has environmental implications such as greenhouse gas emissions from decomposing food waste in landfills. फ्लुएंसी के मार्क्स कम हो जाएंगे मेरे Okay. ख्याल से। 86 से देखा हुआ ना कम। सर फिर दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, वही चला। या मे बी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। यस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपने काफी कंटेंट को भी उसने आप 56 वर्ड उसने पकड़ लिए, लेकिन फ्लुएंसी में सिर्फ 2 नंबर कम हुआ, पहले 86 थे, लेकिन सर प्रोनाउंसिएशन आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मुझे अब क्या करना चाहिए? यही करे। पीटी आसान है भाई, जिंदगी आसान हो गई है। नहीं 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 नहीं, रीडिंग में मुझे क्या करना चाहिए कि स्पीड में इसी तरह रखूं और प्रोनाउंसिएशन पे? स्पीड से आपका अभी भी स्कोर बहुत एक्सलेंट आया, ये भी आ गया बहुत है। अब जब ओवरऑल आएगा तो ये आपका 85, 86 लेकर आ रही होगी आप। शामीन, आर यू रेडी टू ट्राई? शामीन, Yes, I'm ready. हाँ ये आवाज अच्छी है। असल में आपका माइक्रोफोन अच्छा होगा ना, इसको आवाज पसंद आएगी। हाफसा की शायद एक क्वालिटी ये भी है कि इनका माइक्रोफोन बहुत अच्छा चल रहा है, दैट्स वाई। अभी जैसे अमीशा ने ट्राई किया था तो उनकी आवाज बिल्कुल भी उसको समझ नहीं आई। तो ये आपको ट्राई कर, अपना माइक बड़ा अच्छा वाला लेना। आपका 24 सेकंड में स्टार्ट होगा। अच्छा, स्पीड आपको समझ आ गई, बिल्कुल हाफसा की तरह स्पीड होनी चाहिए, स्पीड पे नो ठीक कॉम्प्रोमाइज। है, इंशाल्लाह बुलेट बुलेट चाहिए। कोशिश। स्टार्टिंग इन ठीक है। 12 सेकंड। अच्छा, बीच में कोई मैं आपने गलती कर दी, कोई वर्ड रिपीट कर दिया तो वो डिडक्शन हो जाती है। सो कोई गलती बर्दाश्त नहीं। गो अहेड। One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain, from production to consumption. This not only represents a significant loss of resources, but also has environmental implications such as greenhouse gas emissions from decomposing food waste in landfills. मेरे ख्याल से फ्लुएंसी पे मार्क्स आ जाएंगे, 4.5 आ जाने चाहिए। 82, 84 पर आ जाएंगे। अरे 86, उड़े भाई, बहुत ही ज्यादा पसंद आई है भाई आवाज। देखे कहाँ ले गई। 89, हाफसा आप पीछे रह गई। 89, 86 और 5 आउट ऑफ 5। ये सॉफ्टवेयर सही। आपको बताएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रही है। अच्छा, इस तरह के तकरीबन, राबिया आपका माइक चल गया। इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। आप हर इसी तरह से आपको कुछ टाइम मिलता है, यू रीड इट। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे। इसमें मजीद मेरे तरफ से कोई बात बाकी रही है? आपको क्या लगता है, मुझे नहीं नहीं, और पढ़ाने का क्लियर है, कुछ बताना है, पढ़ाना है? कुछ भी नहीं पढ़ाना, सिर्फ बस प्रैक्टिस ही है। सिर्फ प्रैक्टिस ही है। आप आ जाइए। कोई, राबिया आर यू देयर? अमीशा एक दफा फिर ट्राई कर लें। Yes, sir. चलो, अभी आपका स्टार्ट हो रहा है 30 सेकेंड्स के अंदर। इसको टाइम को हमारे कंट्रोल में नहीं है ये।
इसमें देखते हैं। अमीशा का माइक्रोफोन साथ नहीं दे रहा, वरना अमीशा ये राबिया, आर यू देयर और अमीशा इज देयर, कौन है? Yes, sir. Yes, sir. I राबिया। am there. माइक्रोफोन आपका एक अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी आवाज उसको बिल्कुल क्लियर हो। स्टार्टिंग इन 8 सेकेंड्स, टूट आएगी आवाज, स्टार्ट हो जाएगी ना राबिया। One of the complex agriculture problem is issue of the food waste. Food waste refers to discarding of edible food in at various stage of food supply chain from production to consumption. This not only represent a significant loss of resource but also has environmental implications such as greenhouse gas emission from decomposing food waste in landfills. अच्छा, मैंने सुनने में मैंने आपको इशू ऑफ, यहीं पर कुछ वर्ड गायब हो गए थे, रिसोर्सेज का एस गायब हो गया था। तो अब देखेंगे कंटेंट में आपके नंबर कितने काटता है। ज्यादा नंबर काट लेगा ये कंटेंट में आपके, 50 वर्ड्स पकड़ेगा ये आपके, 52 वर्ड्स पकड़े। देखिए आपने कंटेंट कम कर दिया ना, कंटेंट जितना कम होगा उतने मार्क्स कम होंगे, बट नॉट बैड। चल, क्या ये सवाल सबको क्लियर हो गया? कोई ट्राई करना चाह रहा है, अपना स्कोर जज करना चाह रहा है? मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ? अमीशा, नादिया? Sir, me, Amisha. हाँ, चल, ये आपका माइक्रोफोन असल में आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी आवाज जैसे मुझे भी क्लियर समझ नहीं आ रही, लेकिन ट्राई करते हैं दोबारा। अभी 30 सेकंड में आप दोबारा स्टार्ट हो। 24 सेकेंड्स। टू, वन, टू। One of the complex agricultural problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of a food supply chain, from production to consumption. This is not only represents a significant loss of the resources, but also has environmental implications, such as the greenhouse as a gas emission from the decomposition food waste in landfills. देखते हैं इस दफा ये एक्सेप्ट करता है आपकी आवाज को या नहीं। माइक्रोफोन में मुझे प्रॉब्लम महसूस हो रही है ना, तो देखें आपकी वो आवाज कैच नहीं कर पा रहा है, उसने वो वर्ड्स कैच नहीं किया। वो माइक्रोफोन की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं। यार एक दफा हम भी ट्राई करते हैं, ठीक है? हम देखते हैं हमारा क्या स्कोर आता है, लेकिन मुझे लग रहा है शमीम से कमी आई, बच्चे ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं। मैं तो तजर्बाती अंदाज में चलता हूँ कि मैं देखूंगा कि इसने, मैं अगर ऐसे पढ़ रहा हूं तो ये क्या स्कोर देता है। स्टार्टिंग इन 9 सेकेंड्स। One of the complex agriculture problems is the issue of food waste. Food waste refers to the discarding of edible food at various stages of the food supply chain from production to consumption. This not only represents a significant loss of resources but also has environmental implications such as greenhouse gas emissions from decomposing food waste in landfills. एक वर्ड हमने रिपीट मार दिया था, स्कोर कम कर देगा ये हमारा, कम करेगा ये हमारा स्कोर। हमने एक वर्ड, प्रोनाउंसिएशन पूरे 85, फ्लुएंसी और कंटेंट 87, इसने हमारे 56 वर्ड्स पकड़ लिए। बराबर आ गए भी, वाह भाई वाह, गुड। चले, क्या पहला सवाल मैं समझ सकता हूं कि भाई आप लोग कर लेंगे? दूसरे सवाल की तरफ आए। अब क्या करना है सर? Not everyone wants to keep in touch with their old school friends when they leave school. है ये क्या था सर? ये है रिपीट सेंटेंस।
रिपीट सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस सुनाई दिया जाएगा, वो 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स तक का हो सकता है। आपको उस सेंटेंस को डिट्टो रिपीट करना है। आर यू रेडी फॉर इट? चलो, हफ्सा आप, ये बीच में टूट की आवाज नहीं आएगी, आप स्क्रीन को देखें, आपको बस स्क्रीन को फॉलो करना है, ठीक है? आई एम रीस्टार्टिंग। अपना माइक ऑन कर लें। Not everyone wants to keep in touch with their old school friends when they leave school. Not everyone wants to keep in touch with their old school friends when they leave school. सोलह वर्ड्स थे, 16 वर्ड्स पकड़ लिए, ये देखो। फ्लुएंसी कम है। लेकिन आपने वर्ड्स पकड़ लिए, प्रोनाउंसिएशन पकड़ लिए, फ्लुएंसी में थोड़ा सा अटक गए नहीं आप, वरना यू डिड अ ग्रेट जॉब। दैट्स वेरी थैंक गुड। यू। एक और आप भी ट्राई करें। चलो, In 2011, the population of the world reached 7 billion. In 2011, the population of the world reached 7 billion. अच्छा, आप 3 सेकंड्स देर से करते हैं। जब आप 3 सेकंड्स आपने तो वो टू की आवाज नहीं आ रही। नहीं आएगी, बस वो फौरन शुरू हो जाता है। और अच्छा, जैसे ओके। वो खत्म होगा, नीचे से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वही उसी वजह से वही एक प्रॉब्लम है, जो 3 सेकंड्स का आप ब्रेक ले रहे ओके, हैं, वो उसी मैं वजह। टू की आवाज का वेट कर रही थी। नहीं, ठीक अब है। नहीं करना। और नीचे देखिए लिखा है, इन 2000 द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रीच रीच। 27 बिलियन। अच्छा, यहाँ पर वर्ड्स की तादाद को देख रहा है, ग्रामर डज नॉट मैटर। हम्म। आपने शायद वुड या विल बोला था, बोला था। वर्ड नहीं नहीं, मैंने वर्ड रीच बोला था, रीच्ड नहीं बोला था। अच्छा, सही, लेकिन उसने कैच कर लिया। चले, ठीक शामी है। रेडी? Yes, sir. बस सुनना है और शुरू कर देना है। Before electric lighting, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. The four electro मुझे इसकी समझ नहीं आई सर, इसको रिपीट कीजिएगा काइंडली। The four electroplating क्या था? चले, दोबारा से रिपीट कर दें। Before electric lighting, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. The four वो मुझे वर्ड स्किप हो गया। Slept about 9 to अच्छा, आप देखिए पेपर में भी यही है, यही है। यही ये थोड़ा मुश्किल Before लग रहा elect- है। यही चीज आपको पेपर के अंदर फॉलो करनी है। अगर आपने 2 सेकंड का भी ब्रेक लिया, यू विल फेस द, राइट? सर जिसकी जिस तरह आवाज, अब मुझे इस वर्ड की समझ नहीं आ रही थी क्या प्रोनाउंस किया, तो उसके लिए दोबारा एक और। Even now, scientists still don't know whether animals dream while they sleep. even now scientists don't even know if animals dream while they're sleeping. चलिए, आपने जैसा बोला रिकॉर्ड किया, और आपका स्कोर, उसने 12 वर्ड्स बोले, आपने 8 वर्ड बोले, स्कोर आपके सामने। ठीक है, चले ठीक है। एक और ट्राई करें। ये बोलने में देर मत करनी है, फौरन शुरू कर देना जैसे वो खत्म करें। Emails are quick and convenient. Emails are quick and convenient. ईमेल्स आर क्विक एंड कन्वीनियंट। उसने 3 वर्ड्स ही पकड़े आपके, जबकि आपने बोले सारे थे, लेकिन 3 वर्ड्स ही उसने पकड़े। एक और ट्राई करें। रेडी? Students from different backgrounds can achieve a variety of qualifications. Students from different background can achieve a variety of, इसमें मुझे नहीं आ रहा, ये वाला मुझे। अच्छा, आप देखें, एक तजर्बा करें।
एक तजर्बा ये करें, शुरू का मुझे एंड वाला मुझे भूल जाता है, एक तजर्बा करें, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तजर्बा। क्या करें? ये देखिए मैं करता हूँ। Students from different backgrounds can achieve a variety of qualifications. I want to learn English because I want to go abroad. Can you help me? मैं देख रहा था ये वर्ड्स को काउंट कर रहा है या वाकई ये वो वर्ड्स को काउंट कर रहा है जो इसके अंदर लिखे हैं। तजर्बा नाकाम। सही। ठीक है ना, चले ना, क्योंकि ये कंप्यूटर है ना, अब इसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं बेटा, वही वर्ड्स बोलो जो मैंने बोले। ठीक है ना। अच्छा, आगे पीछे अगर कर दिया तो शायद ये कैच कर लेगा। ये AI है ना, तो आपके वर्ड्स को आगे पीछे अगर आपने थोड़ा बहुत कर दिया है तो ये शायद आपके वर्ड्स को पूरा कंसीडर करे। राबिया मेरा मुझे लग रहा है हाँ। ये इशू चल रहा है कि हम्म, मैं लास्ट वाला मिस कर देती हूँ हम्म। पार्ट। बस ये प्रैक्टिस करनी है। 2-4 सेकंड का ही ये सेंटेंस होगा, 4 सेकंड का सेंटेंस। सही है, अमीशा, ठीक। Nadia, Rabia, are you there? Sir, I wanted to ask one thing. Yes. Sorry for interruption. शमीम को जो आपने फर्स्ट ऑडियो दी थी उसमें वो वर्ड मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी है या क्या वर्ड है? तो Electric. वो ऑडियो जरा, इलेक्ट्रिसिटी है? Before पीपल electric स्लीप lighting, adults Elect- generally slept about 9 or 10 hours per night. Before electric lighting, adults used to sleep 5 hours at night. अच्छा, एक वर्ड अगर हमें समझ ना आ रहा हो, जिस तरह ये इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है इलेक्ट्रिक लाइटिंग Electric है या क्या है? lightning, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. अच्छा सर, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमें वर्ड समझ नहीं आ रहा तो हम गलत वर्ड बोल दें या उसका क्या करें, अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या कहा जा रहा है? समझ नहीं आ प्रोनाउंसिएट। रहा तो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप सोचेंगे मैं क्या करूं। कुछ ना करें, बस इग्नोर करें उस वर्ड को। वो वो कंटेंट, वर्ड वो नहीं, वर्ड वो वर्ड बोले ही ना, या गलत या गलत कोई वर्ड बोल दे नहीं, या स्किप वो कर दें वर्ड। वो वर्ड आप अभी तजुर्बा कर लें। आप इसमें लाइटनिंग मत बोलिएगा। आप चाहे तो इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लें, यही सेंटेंस आप अपने पास लिख लें, बल्कि मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? देखिए जी सर। नीचे नीचे मैंने आंसर शो किया ना, बिफोर इलेक्ट्रिक Before electric lighting, adults नजर आ रहा है? हाँ जी, आगे। ठीक है, अब आप इसमें से लाइटनिंग का वर्ड की जगह कोई और वर्ड बोल के देख लें, चेक ट्राई कीजिए। 1 2 3। generally slept about 9 or 10 hours per night. Before electricity, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. अब ये आपको क्या स्कोर देता है इसके ऊपर? इसने आपके कंटेंट के मार्क्स काट लिए। आपने 11 वर्ड्स बोले और 13 वर्ड्स, ठीक और है। आपके प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स भी काटे, आपके फ्लुएंसी के मार्क्स भी काटे। दोबारा ट्राई कीजिए, दोबारा। Before electric lighting, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. Before electric lighting, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. आप जो ये ब्रेक ले रही है ना 3 सेकंड्स का, Before वो ना ले, उससे आपकी अच्छा। फ्लुएंसी के मार्क्स कटेंगे। 3 सेकंड्स का भी ब्रेक आपका नहीं होना चाहिए। बस जहां वो खत्म करे ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, बस आप स्टॉप पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए। electric lighting, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. Before electric lighting, adults generally slept about 9 or 10 hours per night. अब ये आपको पूरा स्कोर देगा, बस फ्लुएंसी के मार्क्स काट लिए, बाकी कंटेंट पूरा है, प्रोनाउंसिएशन पूरा है। 13 वर्ड इसने पकड़ लिए। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए। ये आपका दूसरा सवाल है जो शायद आपको आसान लग रहा हो। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? पहला सवाल समझ आ गया, दूसरा समझ आ गया। अब आपके पास एक तीसरा सवाल है जो सबका आएगा। ठीक है, और वो तीसरा सवाल है डिस्क्राइब अ इमेज।
आपको एक इमेज मिलती है और आपके पास कितना टाइम होता है, 21 सेकेंड्स होते हैं। मैं इसका टेम्पलेट भी आपको दे दूंगा कि आपको टेम्पलेट यूज करके भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी आप अपनी जहानत से हफ्सा से स्टार्ट लेते हैं। हफ्सा, जो आपको दिख रहा है आप बोलना शुरू करें। टू, वन, टू। All right, this is a graph in front of me, and which shows the number of US household keeping pets, and with respect of different animals. The highest number of pets are shown in the graph is dogs, which is 63.4 million, where the lowest is saltwater fish, which is 1.6 million. Second number is cats, which is 42.7 millions. Then comes freshwater fish, 11.5 millions. Then birds, 5.7 millions. Then reptiles, 4.5 millions. Then eventually it decreased more to horses, 1.6 millions. And as I mentioned before, आपके पास 40 सेकेंड्स होंगे। एक गलती ये मत कीजिएगा कि आप पूरे 40 सेकंड ही बोले। कोशिश कीजिएगा कि आप 38 सेकेंड्स पर जाकर अपने जवाब को सबमिट कर दें। दैट शोज दैट यू हैव डन कंप्लीटली। अगर आप बोलते रहे और बीच में वो स्टॉप कर देते हैं तो दैट शोज दैट यू आर इनकम्प्लीट। ठीक है, अब इसने आपका स्कोर सबमिट करते हैं और देखते हैं कि आपका क्या स्कोर आया। आपको प्रोनाउंसिएशंस पे पूरे मार्क्स मिल गए, कंटेंट पे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल गए, फ्लुएंसी में आप अभी भी पीछे रह गई। AI स्पीच टू टेक्स्ट, दिस इज अ ग्राफ इन फ्रंट ऑफ मी। अच्छा देखिए, जो आपने बोला उसने उसको आपके वर्ड्स में लिखकर दे दिया। इतना अच्छा है ना कि मैंने बोला क्या। so sir, the catch is fluency. Then I believe graph तो हर बंदा अपने अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर देगा। फ्लुएंसी पे फ्लुएंसी है। यू हैव टू, मैंने आपसे यही कहा था कि यू हैव टू सो क्विक एंड यू हैव टू speak as many words as possible. Content is not the major thing. Fluency in pronunciation is. फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, इसी के ऊपर एक और सामने रखते हैं। 23 सेकंड है। शामीन, आर यू रेडी? Yes, sir. आप 15 सेकंड में आप स्टार्ट होगी, जैसी आपको आवाज आएगी टू। ठीक है। This is a graph in front of me showing the number of US households keeping pets. The greatest number is of the dogs, that is 63.4 million, which reduces to cats, that is 42.7 million, and the least is shared by horses and saltwater fish, that is only 1.6 million. So this decreasing trend is shown and also the other animals are shown as 5.4 million. अच्छा, हमने आपका सबमिट कर दिया। जहां आपने बंद किया बोलना, हमने सबमिट कर दिया। 40 सेकंड्स थे आपके पास। देखते हैं इसने आपके कंटेंट में कितने नंबर दिए। इसने आपके कंटेंट में इसने आपके नंबर काट लिए, क्योंकि आपने 30 ठीक है। सेकंड बोला। प्रोनाउंसिएशन में नंबर काट लिए, फ्लुएंसी में थोड़े मार्क्स आपके ज्यादा आ गए, लेकिन आपके कंटेंट में काट लिए। ठीक है, राबिया, आर यू रेडी? तो पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करना होगा या बस? अभी हम आपको एक टेम्पलेट बताएंगे, एक टेम्पलेट दे देंगे। ठीक है। आपको हर ठीक है। अक्षर पर कौन से अल्फाज है जो आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? चले, ठीक है। राबिया, आर यू देयर? Yes. ओके, आपके पास 18 सेकंड है सोचने के लिए। The bar graph showing the total number of pets in USA household keeping is 84.9 m.
which is a dogs. The trend is higher up the dogs, which is 63.4 m. Then the freshwater fish is 11.5 m. The continuous reptiles is 4.5 m. The graph is lying in the saltwater fish is 1.6 m and other is 5 m. मिलियन बोलना था ना, एम वो कहेगा ये एम क्या बोल रही हैं आप, मिलियन 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 मिलियन। देखते हैं आपको क्या स्कोर देता है वो। आपका कंटेंट आपने ज्यादा बोलने की कोशिश करी, कंटेंट बेहतर है, प्रोनाउंसिएशन पे मेहनत करनी है, फ्लुएंसी पे काम करना है। अच्छा, इसका एक टेम्पलेट भी है। हम टेम्पलेट पे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है। जैसे ये टेम्पलेट है आपके पास, ठीक है, और इसमें डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट मेरे पास आ रहा है। आपके पास कोई भी पिक्चर आए, जैसे ग्राफ आया, चार्ट आया, पिक्चर आया, मैप आया, टेबल आया, तो आपके पास 40 सेकंड्स होते हैं। ये टेम्पलेट के वर्ड्स आप अपने पास कहीं मोबाइल पे कोई ऐसी जगह है जहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें? कोई ऐसा है जो फिर आप उसको देख कर बोलें, ये भी गायब हो जाएगा आपके पास सामने से। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और मैं आपके सामने से, देखिएगा, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। ले लिया आप लोगों ने? ये इसका टेम्पलेट है। क्या बदतमीजी करे जा रही है, अच्छे मोबाइल भी ना कभी कभार चलते नहीं। चले, अब ये टेम्पलेट से वापस जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस वाले। डिस्क्राइब इमेज, अब हमने पेट्स इन द हाउस होल्ड, ये हमारे सामने है। मैं यही वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा, फिर आप देखेंगे स्कोर क्या आता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैं इसी में से, जो मेरा टेम्पलेट है ना, मैं याद कर लेता हूँ और मैं वही बोलूँगा। There is an interesting picture in front of me. By having a closer look at the picture, I can see a number of things in the image. As I have to describe it in 40 seconds, I will start with the total number of US household keeping pets, that is 84.9 millions. The highest one among all is the dogs, which is 63.4 million. Apart from that, there are many interesting animals. There are different animals like cats, freshwater fish, birds, reptiles, horses. The least one is the saltwater fish, and other remains 5.4 million. अच्छा, मैंने अपनी जो पिक्चर थी, मैंने उसमें से कोशिश किया, कुछ सारे ज्यादातर वर्ड्स वहीं से मैंने कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद अब इसने कंटेंट पर मुझे क्या स्कोर दिया, देखते हैं इसको मेरी आवाज पसंद आई या नहीं। मानते हो? मेहनत ज्यादा कहाँ करनी है, एक दफा टेम्पलेट का रट्टा मार लो। टेम्पलेट का रट्टा मार लिया तो आधे वर्ड्स तो वहीं से हो गए। फ्लुएंट प्रोनाउंसिएशन बेहतर है, फ्लुएंसी के अंदर वो जो आखिर में और शुरू में हम 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं ना, ये वहां मार्क्स काट रहे हैं। समझ रहे हैं आप इसकी बारीकियां? आपके पास है किसी के पास टेम्पलेट का स्क्रीनशॉट, ट्राई करेगा उसी टेम्पलेट से? पॉसिबल है, पॉसिबल है। वो टेम्पलेट आपके सामने हो, किसी दूसरे का मोबाइल अगर आप इस्तेमाल कर ले घर में तो शायद मुमकिन हो। चल, 3 सवाल आपको क्लियर हो गए आइल्स
PTE स्पीकिंग। अभी तो एक तो जबान पे हमारे PTE की बहुत मुश्किल से आएगा। अब एक है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। एक सवाल का डिफरेंस है, जैसे यहाँ लिखा हुआ रिटेल लेक्चर, ये आपको आईएलटीएस PTE एकेडमिक वालों का सवाल है। PTE कोर के अंदर यहाँ पर होता है डिस्क्राइब अ सिचुएशन। ये दो का डिफरेंस है, वो मैं अपनी अगली सेटिंग में आपसे डिस्कस करूंगा। इसका आखिरी वैरायटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो सेम रहती है तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए। अच्छा, इसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना होता है। सवाल सुनिएगा और फौरन जवाब सबमिट करवाइएगा। हफ्सा अपना माइक ऑन कर ले, आपके पास हार्डली 2 सेकंड हो। What are the clothes that need washing commonly called? सर्फ। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। दोबारा। मुझे क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया। What are the clothes that need washing commonly called? लॉन्ड्री। लॉन्ड्री, ओके। दोबारा सुने। What are the clothes that need washing commonly called? लॉन्ड्री। ओके, मैंने लॉन्ड्री, लॉन्ड्री। मैंने एक वर्ड सबमिट करवाया और एक वर्ड, अगर मेरा जवाब सही है तो देखेंगे मुझे क्या स्कोर देता है। इसने कैच नहीं किया। दोबारा। What are the clothes that need washing commonly called? लॉन्ड्री। कैच नहीं कर रहे। सर मैं बोलूं? हाँ, शायद आपकी आवाज पसंद है इसे। What are the clothes that need washing commonly called? लॉन्ड्री। हाँ, ये शायद आवाज तेज बोला है आपने, तो शायद इसको समझ आ जाए। नहीं, पकड़ नहीं रहा ये। लॉन्ड्री पकड़ तो ले लिया, लेकिन कंटेंट नो, फ्लुएंसी नो, प्रोनाउंसिएशन नो, इसने पकड़ा नहीं। दोबारा ट्राई करें। What are the clothes that need washing commonly called? लॉन्ड्री, लॉन्ड्री। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। What are the clothes that need washing commonly called? लॉन्ड्री। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। सॉरी। What are the clothes that need washing commonly called? That is called laundry. आया? फ्यू वर्ड्स में जवाब बिल्कुल सही हो गया आपका, यस। प्रोनाउंसिएशन आपको वन वर्ड नहीं बोलना, वो कहता है आपको फ्यू वर्ड्स या पूरा एक सेंटेंस आप बोल दें। ऑफन जस्ट वन और फ्यू वर्ड्स इज इनफ। ठीक है, चले, ये बात समझ आ गई। What is the term used for believing in oneself? The सेल्फ third, कॉन्फिडेंस। अच्छा, सॉरी सर। एक वर्ड में ना बोले, सेंटेंस बोले। दोबारा। ओके। दोबारा, एक मिनट। What is the term used for believing in oneself? The term used for believing in oneself is called self-confidence. और मुख्तसर करें। Okay. What is the term used for believing in oneself? Self-confidence is the term. नहीं, मैं बोलता हूँ। What is the term used for believing in oneself? The term is called self-confidence. Yes, yes. The term is called, पूरा सवाल ना ले, the term is called self-confidence. एक और देखिए। What is breakfast, lunch, and dinner categorized as?
it is categorized as meal? No. जवाब बताओ. What is breakfast, lunch, and dinner categorized as? It is categorized as three times of meal. Times के ना तो type के. No. And Oh. answer is, मैंने meals ही बोला था यार, देखो बदतमीजी कर रही है ये. मैं बोलता हूँ दोबारा. What is breakfast, lunch, and dinner categorized as? They categorize as meals. अच्छा, मैंने बोला है they categorize as meals. तो देखिए उसको मेरी बात समझ आई. आंसर देने का तरीका, मैंने सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट प्रोनाउन. They categorize as meals. What is the term for the size or mass of something, especially when it is very large or not divided into smaller parts? That is huge. No. बताइए. What is the term for the size or mass of something, especially when it is very large or not divided into smaller parts? Bulk. Bulk. बहुत कोई चीज बहुत बड़ी हो. What is the term of the size or mass of something, especially when it is very large or not divided into smaller parts? आपको स्पीकिंग का पार्ट पीटीई का कैसा लगा? मुश्किल लगा या आसान लगा अब तक? So this portion is a bit difficult because we never know what question अच्छा may ये came in it. अच्छा How ये to answer it. पीटीई के अंदर मैं आपको ये ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं. यहाँ पर आपके पास एक चीज होती है, वो होती है प्रेडिक्शंस. यहाँ पर लिखा हुआ है आपको प्रेडिक्शंस. प्रेडिक्शंस, ये देखो प्रेडिक्शंस. आपको Yeah. प्रेडिक्शन की फाइल मिल जाती है और इसमें चीजें रिपीट होती है. अगर आप ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कौन सा सवाल आएगा, आपके पास 1840 क्वेश्चंस है. Oh. 5 दफा लिखा हुआ प्रेडिक्टेड 5 टाइम्स. ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ प्रेडिक्टेड 3 टाइम्स. तो इसका मतलब ये है कि ये आ चुका है. ठीक है ना. ये अब यहाँ पर देखें प्रेडिक्शंस. तो जो प्रेडिक्शंस है वो ये है जो प्रीवियसली आ चुके हैं. तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितनी देर, एक दिन में कितने सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे ना. जनरल नॉलेज चाहिए आपकी. मैंने कुछ Okay. सवाल के जवाब दिए थे, वो मेरी जनरल नॉलेज से क्लिक हो गए. जैसे भी एक आएगा. What are the clothes that need washing? Cup? Okay. Sir, there is one more thing. Approximately कि how जो long does it take to get a full moon? अब देखिए ये जनरल नॉलेज है. कितनी देर लगती है पूरा चांद होने में? तो ये हमारी जनरल नॉलेज है. कितनी दिन में पूरा एक चांद होता है बताइए. 14 days. अच्छा. 14 Approximately days. how long does it take to get a full moon? It normally takes 30 days. Oh. आपका 14 दिन में मून हो जाता है. Sorry. Sorry. It is अच्छा देखो, ये मुश्किल नहीं है, ये आपकी नॉलेज है. आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे, ये वही सवाल है जो रिपीट होंगे. पीटी के अंदर ये अच्छी बात है, रिपीट होते हैं सवाल. 3 Okay. सवाल हो So गए. अगर एक सर और वो ना आए तो मतलब हम क्या करें इसका? फॉर एग्जाम्पल हमें ना आता हो तो फिर उसको स्किप करें या गलत बोल दें, क्या करें? कुछ ना करें, कुछ करेंगे भी तो भी नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है ना. लेकिन अच्छा. अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आपने इसके 1000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया एक दफा, अब देखो ये वाली बात दिमाग से निकलेगी.
पूरा चांद होने में कितने दिन लगते हैं? नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी। तो बस वो एक दफा आपने प्रैक्टिस कर लेना है। 1000 क्वेश्चन बैठ के सुन ले, हार्डली 10 दिन में सुन लेंगे। एक दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। जनरल नॉलेज जो स्कूल में करते थे वही काम आपको यहाँ करना है। एक सवाल बस रह ये गया। तो चीज ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्लुएंसी में थोड़ा सा होगा, क्योंकि कभी बंदा तो जब हो आप जाता है ना 100 न्यू क्वेश्चन। जब आप 100 सवाल की प्रैक्टिस करेगी, सुनेगी, उसके बाद अपना आंसर सबमिट करवाएंगी, तो फ्लुएंसी आ जाएगी ना 1 महीने में। एक दिन का सवाल थोड़ी नहीं, सही एक है। एक महीने में प्रैक्टिस के साथ फ्लुएंसी आ जाएगी। अब आपको मुझसे स्पीकिंग की क्लास की कोई रिक्वायरमेंट रही है आपकी कि मैंने कुछ देना है? नहीं, अब तो बताइए तब। प्रैक्टिस ही है। अब आपको मुझसे कुछ चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए आपको मुझसे, सिर्फ ये पोर्टल चाहिए। ये पोर्टल तो अब ये रिटेल लेक्चर क्या है? रिटेल लेक्चर ये एकेडमिक वालों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। आइए, इसमें आपको क्या करना है, सुनना शुरू करें। Today, I am honored to talk about the Apollo moon landing, a momentous event that marked a new era in human history. On July 20th, 1969, Apollo 11 landed on the moon, turning science fiction into reality and opening a new chapter in space exploration. The Apollo moon landing was not just a technological triumph. It represented the culmination of human curiosity, ingenuity, and determination. It showed the world what can be achieved when we dare to dream big and work tirelessly towards that dream. The iconic words of Neil Armstrong, "That's one small step for man, one giant leap for mankind," encapsulated the significance of the moment. This landmark achievement also had profound implications beyond space exploration. It spurred advancements in technology, some of which we use in our everyday lives, like satellite communications and numerous aerospace innovations. In conclusion, the Apollo moon landing stands as a testament to human potential. It serves as an inspiration to all of us, reminding us that with ambition and collaboration, we can reach beyond the stars. अच्छा, अब अगर आप ये सोच रही हैं कि सर ये तो हम नहीं बोल सकते, तो बेटा यहाँ पर आपको लिखना अलाउ होता है। आप यहाँ पर नोट्स ले सकते हैं। जब आप नोट्स ले रहे होंगे ना, आपने सुना और सुनते हुए नोट्स लेते रहे, लिखते रहे अपने पास, लिखते रहे, जितना लिख सकते लिख लें। और जरूरी नहीं है पूरी स्पेलिंग्स लिखें, बस अपने पास नोट्स बनाते रहे। और उसके बाद 40 सेकंड आपको बोलना है। अभी आपके पास पेपर और पेंसिल है? है पेपर और पेंसिल? कल मैं जी आपको सर। स्पीकिंग का ये वाला सवाल, टाइम ज्यादा हो गया हमारा आज। कल हम स्पीकिंग का ये वाला सवाल, और एक सवाल पीटीई कोर में आता है, ये पीटीई एकेडमिक में आता है। पीटीई कोर के अंदर यही सवाल बदल जाएगा, और उसकी जगह पर आपके पास जो सवाल आएगा वो सवाल होता है डिस्क्राइब द सिचुएशन। आपने कभी जिंदगी में रोल प्ले किया है? रोल प्ले कि आप एक रेस्टोरेंट पे गए, और जब आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहां पर होता यह है कि आ, आप चाय गिर जाती है। अब जब चाय गिर जाती है तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये हुआ कि आपने जो है वो क्या बोलना है। अब बताइए आप क्या बोलेंगे। बस वो आपको एक सिचुएशन देगा। जब वो आपको एक सिचुएशन देगा तो आपको उस पर बात करनी है। मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी आपने रिटेल लेक्चर देख लिया, कल आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। देखते हैं अगर वो आ गया हो मेरे सामने। ये आ गया, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। Today, देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन गाइडलाइंस, सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पर वो बोलने वाली है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद। discuss the process of resolving a conflict. ये देखिएगा, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ कोवर्कर और अ फ्रेंड इन कंस्ट्रक्टिव मैनर। कोई झगड़ा हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, जरा उसको सॉल्व करवाते हैं। आप साथ सॉल्व करवाइएगा।
Discuss the process of resolving a conflict with a coworker or friend in a constructive manner. आप 20 सेकंड में स्टार्ट करेंगे, जैसे ही बोलेंगे यार मुझे पता चला तुम्हारी आपस में लड़ाई हो गई है यार, देखो होता रहता है, आज ये दोस्तों में ऐसा होता है, तो मैं बुरा नहीं मानना चाहिए, चलो सारी बातों को भूल जाओ, आओ फिर से दोस्त बन जाओ, ठीक है ना। फ्रेंड और कोवर्कर वर्ड इस्तेमाल करें। सॉरी सर, ये दोबारा स्टार्ट करते हैं। चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। इसमें दोनों इंडिविजुअल्स मैंने बनना है और डायलॉग दोनों के खुद मैंने कहने हैं। मैं एक दफा ट्राई करता हूँ। Discuss the process of resolving a conflict with a coworker or friend in a constructive manner. अच्छा, मैं क्या करूंगा, जो ऊपर वर्ड्स लिखे हुए ना, मैं उनको पहले अपने पास लेकर आऊं, आप देखिएगा। डिस्कस द प्रोसेस, उसने कहा प्रोसेस को डिस्कस करें, तो मैं किस तरह से इस जवाब को सबमिट करवाऊंगा, मेरा जवाब इसको पसंद आ गया तो फिर आप मेरे जवाब से और बेहतर जवाब बनाइए, ठीक है। ओके। The process of resolving a conflict with a friend should be very constructive. If two friends have fought with each other, one should play a role that they should not fight next time. So one should make them understand, because conflict is not a good thing. We should forget the things, we should resolve the problems, we should sit down and we should try to pacify both the participants, both the co-workers or the friends. I think that should be better for everyone. अच्छा, मैंने क्या किया, मैं कोशिश किया, मैंने कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, कोवर्कर का इस्तेमाल किया, फ्रेंड का इस्तेमाल किया, कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया। मैं देखता हूं कि क्या इसको इस तरह का जवाब पसंद आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या बात है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। फिर देखें, पसंद आ गया, नॉट बैड। 74 पे वो चला गया, 51 4। अब सब बात समझ आई किस तरह से ट्राई करना है। सही सर, आई तो है। चले ट्राई करें। वेल, टूट नहीं टू आएगी, रिजॉल्व। अरे टूट आएगी ना, अभी टूट आएगी। अच्छा अच्छा, ओके। पूरा पीटी स्पीकिंग आज ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। Discuss the process of resolving a conflict with a coworker or friend in a constructive manner. Starting in 15 seconds. Conflicts are a natural process of life. So the process of resolving a conflict with a friend is to talk about what hurt hurt oneself and what hurt other person, and what are the inner conflicts which needs to be taught about or discussed about. So I think there should be no shame in discussing the conflict, and the mediator should not make a conclusion for both of them. तो आया, बोल दिया, बोलना है। देखते हैं उसका कितना अप्रोप्रिएट रहा आपका जवाब, इसको कितना। Let's see. 70। प्रोनाउंसिएशन में आप थोड़े लैग कर गए, फ्लुएंसी कमजोर पड़ गई और प्रोनाउंसिएशन और बुरे हो गए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पूरा आज पीटीई स्पीकिंग क्लियर कर दिया कि क्या है पीटीई स्पीकिंग में। पीटीई स्पीकिंग के अंदर आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आपको मैं बताऊं, आजकल जो तैयारी करने का फॉर्मेट है वो यही है कि आप 3 मास्टर क्लासेस ले लें। जैसे आज आपकी ये मास्टर क्लास हो गई पूरी स्पीकिंग के ऊपर, अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, पोर्टल चाहिए। अब पोर्टल पे बैठकर आप प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें। हाँ, उसके साथ आप, अगर आपको लगता है कि आप
बिल्कुल बोल नहीं सकते। देखिए यहाँ पर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैटर कर रही है। अब आप कह रहे हैं मैं तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकती, भाई अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकती तो फिर आप पीटीई में क्या बोलेंगे? बोलना मुश्किल नहीं है, अगर आप सिर्फ बोल सकती है ना तो बोलना तो मुश्किल नहीं है। आपको अपने प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे काम करना है। उसके लिए भी मैं आपसे कुछ अपना एक लेक्चर शेयर कर दूंगा, उसके अंदर कुछ रिलेटेड वीडियोस हैं। एक हफ्ते का वो प्रोनाउंसिएशन कोर्स कर लें आप देखें फिर आपके प्रोनाउंसिएशन में कितने अच्छे मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कल बात करेंगे। आज बहुत लंबा सेशन आप लोगों के साथ हो गया, पूरी मास्टर क्लास आज बड़ी जबरदस्त रिकॉर्ड हो गई पीटीई स्पीकिंग के ऊपर। कल की मास्टर क्लास हम रखेंगे पीटीई रीडिंग के ऊपर, और अगर वक्त बचा तो लिसनिंग पर। और राइटिंग में मैंने आपसे कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वही स्कूल वाला काम करना है, रट्टा लगाना। ठीक है ना? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे मिलते हैं, सेम टाइमिंग सेम चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम